Hello everyone, this video is a part of our free Lean Six Sigma Black Belt, Green Belt and Yellow Belt video series. Language of this video is English, that is Hindi English mix. यह मॉड्यूल हमारी फ्री लीन सिक्स सिग्मा ब्लैक बेल्ट, ग्रीन बेल्ट और येलो बेल्ट वीडियो सीरीज का हिस्सा है। इस वीडियो की भाषा हिंदी इंग्लिश मिक्स रहेगी। Details about the syllabus of black belt, green belt and yellow belt course and how you can obtain their certificate through us is being given through some slides. Certification is a paid service, but this video series is absolutely free. ब्लैक, ग्रीन और येलो बेल्ट कोर्स का विस्तृत सिलेबस और आप हमसे इनका सर्टिफिकेट कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसकी संक्षिप्त जानकारी कुछ स्लाइड्स के माध्यम से दी गई है। सर्टिफिकेशन एक पेड सर्विस है, लेकिन यह वीडियो सीरीज पूरी तरह से फ्री है। वी हैव ऑलरेडी कवर्ड these modules in this video series. You can find the link of full playlist of this video series in the description box of this video. इस वीडियो सीरीज में अब तक हम इन मॉड्यूल्स को कवर कर चुके हैं। इस वीडियो सीरीज की पूरी प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। काइंडली सब्सक्राइब अवर चैनल टू वॉच ऑल द मॉड्यूल्स। सभी मॉड्यूल्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं इस मॉड्यूल में ये टॉपिक्स कवर करूँगा। I will cover these topics in this module. Multivariate analysis or multivariate chart was developed by Leonard Seder in 1950s and later popularized by Dorian Shinin as part of Shinin problem solving methodology. Multivariate analysis या multivariate chart को 1950s में लेनार्ड सीडर ने डेवलप किया था, जिसको बाद में डोरियन शाइनिन ने शाइनिन प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथडोलॉजी के अंतर्गत पॉपुलराइज्ड किया। डोरियन शाइनिन was an American quality engineer, consultant and statistician who developed very simple, practical and powerful statistical problem solving methodology called as Shinin system. Its objective is to identify the dominant cause of variation or defects using Shinin tools एंड टेक्निक्स। डोरियन शाइनिन एक अमेरिकन क्वालिटी इंजीनियर, कंसल्टेंट और स्टैटिस्टिशियन थे, जिन्होंने बहुत ही सिंपल, प्रैक्टिकल और पावरफुल स्टैटिस्टिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग को डेवलप किया, जिसे शाइनिन सिस्टम के नाम से जाना जाता है। शाइनिन सिस्टम का ऑब्जेक्टिव शाइनिन टूल्स और टेक्निक्स के द्वारा वेरिएशन और डिफेक्ट्स के आने के पीछे के डोमिनेंट कॉज को आइडेंटिफाई करना है। Shinin system was originally developed to solve complex manufacturing problems, but in late 1990s and early 2000s, Shinin's organization, that is Shinin LLC, developed a specific branch for service and transactional sector called as Transactional Problem Solving, that is TPS. TPS works as an extension of the Shinin system to address the problem of service sector and processes. Shinin system originally complex manufacturing problem को solve करने के लिए develop किया गया था, but late 1990s और early 2000s में service और transactional sector के लिए Shinin की organization Shinin LLC ने एक specific branch create की, जिसको ट्रांजैक्शनल प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी टीपीएस कहा जाता है। टीपीएस शाइनिन सिस्टम का एक एक्सटेंशन है जो सर्विस सेक्टर और प्रोसेसेस की प्रॉब्लम्स को एड्रेस करता है। ट्रांजैक्शनल एंड सर्विस प्रोसेस में जो आते हैं वो इस प्रकार हैं। ट्रांजैक्शनल एंड सर्विस प्रोसेसेस इंक्लूड बैंकिंग, इंश्योरेंस, हेल्थ केयर, एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, ह्यूमन रिसोर्सेज, सप्लाई चेन, customer service processes, etc. etc. Shinin tools and techniques are practical problem solving methodology for identifying the dominant cause, that is red X, of process variation or defects by talking to the parts instead of relying on heavy mathematics. The core philosophy behind is the Shinin's
famous quote. Let's the part guide you to the answer. What is red X will be discussed very soon in this video. शाइनिंग टूल्स और टेक्निक्स एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथडोलॉजी है जिसमें वेरिएशन या डिफेक्ट्स के आने के पीछे के डोमिनेंट कारण, इसको हम रेड एक्स कहेंगे, का पता पार्ट से बात करके लगाया जाता है, ना कि हैवी मैथमेटिक्स के द्वारा। शाइनिंग सिस्टम के पीछे शाइनिंग की कोर फिलॉसफी उनके फेमस कोट के द्वारा पता चलती है, और वो फेमस कोट है, लेट द पार्ट्स गाइड यू टू द आंसर। रेड एक्स क्या होता है, इसकी चर्चा जल्दी ही इस वीडियो में मैं आपके साथ करूंगा। मोस्ट ऑफ द शाइनिंग टूल्स सच एज पेयर्ड कंपैरिजन, कंपोनेंट सर्च, वेरिएबल सर्च, एक्सेट्रा quickly finds the dominant cause of the problem by critical observation and practical experiments rather than using complex statistical tools or heavy mathematics. अधिकतर शाइनिंग टूल्स जैसे कि पेयर्ड कंपैरिजन, कंपोनेंट सर्च मेथड, वेरिएबल सर्च मेथड बिना किसी कॉम्प्लेक्स स्टैटिस्टिकल टूल या हैवी मैथमेटिक्स का इस्तेमाल किए प्रॉब्लम के डोमिनेंट कॉज को शीघ्र ही ढूंढ लेते हैं, और वो भी सिर्फ क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन और प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा। शाइनिन बिलीव दैट in most of the manufacturing problems, one dominant factor contributes much more to the problem or defects than all other factors. He called this factor as red X. शाइनिन का ये मानना था कि अधिकतर मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम्स में सिर्फ एक डोमिनेंट फैक्टर बाकी फैक्टर्स के मुकाबले कहीं ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है, और उन्होंने इस फैक्टर को रेड एक्स कहा। The Shainin concept of red X is that red X is the single dominant cause of a particular problem, that is response, or particular undesirable variation or particular defect. For particular problem, we use the term response, and for suspected factors, we use the term SSV, that is suspected source of variation. किसी भी particular problem या किसी भी पर्टिकुलर अनडिजायर्ड वेरिएशन या पर्टिकुलर डिफेक्ट्स के आने के पीछे जो सिंगल यानी कि अकेला डोमिनेंट कॉज या फैक्टर होता है उसको रेड एक्स कहते हैं। किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए हम एक टर्म यूज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं रिस्पॉन्स, और प्रोबेबल कॉज या प्रोबेबल फैक्टर्स के लिए हम टर्म यूज़ करते हैं एसएसवी। In a layman's language, if a problem can occur because of n probable reasons or n factors, then one reason or cause called as red X is behind 70 to 80% or even 100% of that problem. एक आम आदमी की भाषा में समझे, अगर कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम n रीजंस या n फैक्टर्स की वजह से आ सकती हैं, n मतलब बहुत सारे, तो वन रीज़न और कॉज कॉल्ड एज रेड एक्स वो प्रॉब्लम में 70 to 80% या यहाँ तक कि 100% कंट्रीब्यूट कर सकता है। इन अदर वर्ड्स, रेड एक्स हैज़ द लार्जेस्ट इम्पैक्ट ऑन आउटपुट वाई, एंड इट शुड बी अवर प्राइमरी टारगेट फॉर करेक्टिव एक्शन। शाइनिन कॉल्ड रिस्पॉन्स एज ग्रीन वाई। संक्षेप में कहा जाए तो रेड एक्स वो होता है जो आउटपुट वाई पर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करता है, और ये हमारा करेक्टिव एक्शंस के लिए प्राइमरी टारगेट होना चाहिए। शाइनिन ने आउटपुट यानी रिस्पॉन्स को ग्रीन वाई कहा, एंड द स्ट्रेटेजी इज वाई टू एक्स स्ट्रेटेजी, विच मीन्स स्टार्टिंग विद द रिस्पॉन्स दैट इज वाई एंड वर्किंग बैकवर्ड्स टू फाइंड द डोमिनेंट कॉज दैट इज रेड एक्स। How to find the red X? This we will learn through various Shainin tools and techniques in our free Six Sigma Black Belt YouTube video series. Y2X strategy ये है कि हम response Y से start करेंगे और backward work करेंगे ताकि हमें dominant X मिल जाए, और dominant X को हम क्या कहेंगे? red X। अब ये red X ढूंढे कैसे, इसको हम अपनी
फ्री सिक्स सिग्मा ब्लैक बेल्ट यूट्यूब वीडियो सीरीज में विभिन्न शाइनिंग टूल्स और टेक्निक्स के द्वारा सीखेंगे। लेट अस अंडरस्टैंड ग्रीन वाई एंड रेड एक्स विद सम एग्जांपल्स। मैं रेड एक्स और ग्रीन वाई को कुछ एग्जांपल्स के साथ बता रहा हूँ। ये इंग्लिश में है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ जाएंगे। For example, green Y, that is desired output or response, is that a particular casting part of tractor X should not break in the field. Suppose the suspected source of variations for the breakage are thickness of the material, radius, hardness of the material, microstructure, high or low torque of casting mounting bolts. After investigation, using the appropriate shining tool, suppose hardness is responsible for around 90% of this part breakage, then hardness is red X. For example, green Y, that is desired output or response, is that a particular bearing in part A should rest at proper place or proper seat, and suppose the suspected parameters are pressure of the machine, ovality in the ID of the part, taper in the ID of the part, OD of the bearing, depth of the ID of the part, burr in the ID of the part. After using the appropriate shining technique or tool, suppose pressure of the machine is found to be causing around 100% of bearing not seated properly cases, then pressure is red X. मैं आपके साथ एक सर्विस सेक्टर या प्रोसेस का एग्जाम्पल साझा कर रहा हूँ। आई एम गिविंग यू एन एग्जाम्पल फ्रॉम सर्विस सेक्टर और प्रोसेस. For example, the green Y, that is desired output or response, is that percentage rejected insurance claim should be low. Suppose the suspected possible cause for high rejection are missing documents, that means documents incomplete, incorrect coding, number of years of employee training, software issues, and customer data errors. After using the appropriate shining tool, suppose customer data error is responsible for around 70% of the rejected insurance claim, then this factor is red X. Transactional problem solving methodology, that is TPS, uses the same philosophy, that is red X philosophy, starting with response Y and working backwards to find dominant X, that is red X. Pink X is the second most dominant root cause. Pink X can be independent or can work in interaction with the red X. Pink X second most dominant cause होता है, वो independent भी हो सकता है और red X के साथ interact भी कर सकता है. For example, there is leakage in the shaft from a oil seal area. Suppose after the investigation using appropriate shining tool, surface finish of the shaft was found as red X. But it could solve current problem by only 70%, which we want to solve by around 95 to 100%. So we have to further investigate to find next dominant cause. For example, in this case, it is high ovality in the diameter of the shaft. Though high ovality contributes in only 20 to 30% cases, but it cannot be ignored and will be treated as pink X. उदाहरण के लिए किसी शाफ्ट में ऑयल सील से लीकेज की प्रॉब्लम है. जब हमने शाइनिंग टेक्निक्स का एप्रोप्रिएट टूल लगाकर उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया तो शाफ्ट की सरफेस फिनिश एक डोमिनेंट रेड एक्स पैरामीटर मिली, बट उसको ठीक करने के बाद यानी सरफेस फिनिश को ठीक करने के बाद सिर्फ 70% ही प्रॉब्लम सॉल्व हो पाई, जबकि हम लीकेज को 95 से 100% सॉल्व करना चाहते थे.
तो हमें लीकेज का नेक्स्ट डोमिनेंट कॉज ढूंढने के लिए आगे इन्वेस्टिगेट करना होगा। मान लीजिए इन्वेस्टिगेशन के बाद शाफ्ट के ओडी में हाई ओविलिटी नेक्स्ट डोमिनेंट कॉज मिली। हालांकि यह कॉज या ये कारण लीकेज होने में सिर्फ 20 से 30% कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन इसे इग्नोर नहीं किया जा सकता और इस कारण यानी शाफ्ट के ओडी में हाई ओविलिटी को हम पिंक एक्स कहेंगे। मैं संक्षिप्त समरी को प्रस्तुत कर रहा हूँ, इसको ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा। ये इंग्लिश में है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ जाएंगे। So the summary is that green Y is the desired product or process output or response. For example, diameter, weight, length, no leakage, no noise, gear engagement smooth, low waiting time, high customer or employee satisfaction level, etc. etc. Shinin's objective is to improve the green Y by identifying the red X using the appropriate Shine-in tool and controlling it. If we don't get the desired green Y, then go to the next level and identify the pink X. It is important to mention here that two pink X can interact to form a red X. This we will learn in subsequent modules. एक बात यहाँ पे कहना जरूरी है कि कभी कभी दो पिंक एक्स आपस में इंटरेक्ट करके एक रेड एक्स बना देते हैं। इसको हम विस्तार पूर्वक अपने भविष्य में आने वाले मॉड्यूल्स में समझेंगे, सीखेंगे। इन दिस वीडियो सीरीज वी विल लर्न द फॉलोइंग शाइन-इन टूल्स। इस वीडियो सीरीज में हम ये शाइन-इन टूल्स सीखेंगे। मल्टीवेरिएट एनालिसिस, paired comparison, process parameter search, component search, variable search and B versus C analysis। ये 3 स्लाइड्स यह बता रही हैं कि क्यों हम ओरिजिनल शाइन-इन टूल्स को डायरेक्टली सर्विस और बिजनेस प्रोसेसेस में इस्तेमाल नहीं कर सकते। बिजनेस और सर्विस सेक्टर की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें ओरिजिनल शाइन-इन टूल्स को अडेप्ट करना पड़ता है। These 3 slides explain why original Shine-in tools cannot be directly applied to service and business processes. Instead, they need to be adapted to solve problems of certain business following the same red X philosophy. That is, starting with the response Y and working backwards to find the dominant X, that is red X. For example, Shine-in tools component search cannot be applied to most business and service processes because it is designed for physical components. However, the paired comparison technique can often be applied to identify the red X in many seemingly complex business and सर्विस प्रॉब्लम्स। उदाहरण के लिए सर्विस और बिजनेस प्रोसेसेस के लिए हम शाइन-इन टूल्स कंपोनेंट सर्च का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि कंपोनेंट सर्च के लिए हमें फिजिकल कंपोनेंट्स की ज़रूरत होती है। वहीं दूसरी तरफ पेयर्ड कंपैरिजन का प्रयोग कहीं कहीं डायरेक्टली भी किया जाता है और कहीं कहीं इसको अडेप्ट करके भी किया जाता है। सो इट्स टाइम टू डिस्कस मल्टीवेरी चार्ट। तो अब समय आ गया है मल्टीवेरी चार्ट को डिस्कस करने का। मल्टीवेरी चार्ट और मल्टीवेरी एनालिसिस इज ए एनालिटिकल एंड और ग्राफिकल टेक्निक और टूल टू आइसोलेट एंड कंपेयर sources of variation in 3 major categories, that is positional, cyclical and temporal, so as to identify which category is dominant for high process spread and poor precision. मल्टीवेरी चार्ट या मल्टीवेरी एनालिसिस एक एनालिटिकल या ग्राफिकल टूल और टेक्निक है जो कि सोर्स ऑफ वेरिएशन को 3 मेजर कैटेगरीज में आइसोलेट करके कंपेयर करता है, और वो 3 मेजर कैटेगरी हैं साइक्लिकल, पोजिशनल एंड टेम्पोरल। और इसका मकसद ये पता लगाना है कि पुअर प्रिसीशन या हाई स्प्रेड के लिए कौन सी कैटेगरी यानी कि साइक्लिकल,
पोजिशनल और टेम्पोरल में से किसका वेरिएशन ज़्यादा डोमिनेंट है, ताकि हमारा इन्वेस्टिगेशन फोकस्ड हो और टाइम कम से कम ले। Why we need multivariate analysis? In a simple language, multivariate is one of the powerful tool which can help in reducing the process spread. How? By categorizing the process spread or variation in three major categories, that is positional, cyclical and temporal, and then focusing our investigation on that category where the spread, that is process variation, is more. Multivariate analysis can be thought of as first level screening or macro level analysis tool that filters suspected causes from many probable causes. Why it can be considered as a screening tool? Because though it identifies red X out of positional, cyclical and temporal variation, but many a times it does not identify the exact red X product or process parameter responsible for the excessive variation. मल्टीवेरिएट एनालिसिस को हम फर्स्ट लेवल स्क्रीनिंग टूल या मैक्रो एनालिसिस टूल के रूप में भी देख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत सारे कॉजेस को फिल्टर आउट कर देता है। हालांकि ये पोजिशनल, साइक्लिक और टेम्पोरल में से कौन सा वेरिएशन डोमिनेंट है यानी रेड एक्स है वो बता देता है, लेकिन ये एग्जैक्ट प्रोसेस या प्रोडक्ट पैरामीटर जो उस वेरिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसका पता अधिकतर नहीं लगा पाता। After screening the few suspected source of variation from the list of many probable causes through multivariate analysis, actual red X can be easily found from the shortened list of SSV using appropriate tools and techniques such as component search, variable search, paired comparison, stratification, regression analysis, focused cause and effect diagram, YY analysis, ट्री डायग्राम, एक्सेट्रा। जब हम मल्टीवेरी के द्वारा अपनी एक लंबी लिस्ट ऑफ प्रोबेबल कॉजेस में से कुछ सस्पेक्टेड सोर्स ऑफ वेरिएशन को स्क्रीन कर लेते हैं, तो उसके बाद एक्चुअल रूट कॉज को ढूंढने के लिए हम एप्रोप्रिएट टूल का आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो एप्रोप्रिएट टूल हो सकते हैं कंपोनेंट सर्च, पेयर्ड कंपैरिजन, वेरिएबल सर्च, stratification, regression analysis, YY analysis, focused fishbone diagram, tree diagram, इत्यादि इत्यादि। In short, multivariate identifies where the largest variation exists, that is positional, cyclical or temporal, and once this dominant source of variation is known, many potential causes can be eliminated, that is ruled out, and investigation to find the exact root cause becomes directed, focused, easier and fast. संक्षेप में कहें तो मल्टीवेरिएट ये बताता है कि पोजिशनल, साइक्लिकल और टेम्पोरल में से कहाँ वेरिएशन ज़्यादा है। और एक बार इस डोमिनेंट सोर्स ऑफ वेरिएशन का जब पता चल जाता है तो काफ़ी सारे पोटेंशियल कॉजेस रूल्ड आउट या एलिमिनेट हो जाते हैं, और हमारा जो इन्वेस्टिगेशन है वो रूट कॉज को फाइंड करने के लिए ज़्यादा फोकस्ड, डायरेक्टेड, आसान और तेज हो जाता है। हाउ मल्टीवेरिएट कैटेगरीज हेल्प्स, लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद एन एग्जांपल। सपोज वी वांट टू इम्प्रूव द ऑर्डर डिलीवरी टाइम ड्यूरिंग लंच टाइम in a particular restaurant. Order delivery means after receiving the order. If we brainstorm in a team, we can get around 20 to 30 possible causes for high order delivery time. मल्टीवेरी की कैटेगरीज कैसे हेल्प करती हैं इसको समझने के लिए एक उदाहरण मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। मान लीजिए हम किसी रेस्टोरेंट की लंच टाइम के दौरान ऑर्डर डिलीवरी टाइम को सुधारना चाहते हैं, इम्प्रूव करना चाहते हैं। अगर हम एक सही टीम में ब्रेनस्टॉर्म करें तो हाई ऑर्डर डिलीवरी टाइम के करीब हमें 20 से 30 प्रोबेबल कारण मिल सकते हैं। ऑर्डर डिलीवरी का यहाँ मतलब है ऑर्डर रिसीव करने के
बात। मल्टीवेरी एनालिसिस एक ऐसा जादू है जो ना सिर्फ हमें मेजर सस्पेक्टेड सोर्स ऑफ वेरिएशन के स्ट्रॉन्ग हिंट्स देगा, बल्कि बहुत सारे प्रोबेबल कॉजेस को एलिमिनेट भी कर देगा। और ये जादू कैसे होता है, चलिए देखते हैं। Multivary is that magic which will not only eliminate many probable causes but will also provide a strong hint about the major SSV, guiding us to the right root cause. How? Let's watch this magic. Let's take cyclical variation as variation of order delivery time of 5 consecutive orders during the lunch time. मान लीजिए लंच टाइम के दौरान 5 कंसेक्यूटिव ऑर्डर्स के ऑर्डर डिलीवरी टाइम को साइक्लिक वेरिएशन लिया जाता है। लेट्स टेक पोजिशनल वेरिएशन एज ऑर्डर डिलीवरी टाइम इन 4 जोन्स ऑफ द रेस्टोरेंट विच आर हैंडल्ड बाय 4 different managers who keeps on rotating. These 4 zones are east, west, south of the restaurant and first floor. Zones are identified by table number on the order. The kitchen is in the north of the restaurant at the ground floor. इस केस में पोजिशनल वेरिएशन रेस्टोरेंट के 4 जोन्स में ऑर्डर डिलीवरी टाइम का वेरिएशन है, और ये जोन्स हैं ईस्ट, वेस्ट और साउथ ऑफ द रेस्टोरेंट और रेस्टोरेंट का फर्स्ट फ्लोर। इन जोन्स की पहचान ऑर्डर पर दिए हुए टेबल नंबर से की जा सकती है। रेस्टोरेंट के नॉर्थ साइड में रेस्टोरेंट का किचन है। लेट्स टेक टाइम टू टाइम वेरिएशन एज ऑर्डर डिलीवरी टाइम इन डिफरेंट डेज ऑफ द वीक, दैट इज मंडे to Sunday. For like-to-like comparison, timing of data collection is around 1 p.m. सोमवार से इतवार के बीच में ऑर्डर डिलीवरी टाइम के वेरिएशन को हमने यहाँ पर टाइम टू टाइम वेरिएशन कंसीडर किया, और सभी दिन का ऑर्डर डिलीवरी टाइम करीब 1 बजे के आसपास नोट किया जाता है। After deciding cyclic, positional and temporal variation, we have to collect data in a structured form as shown on your screen. The calculations and actual data will be explained in detail with a similar example in the later half of this video. This data should be ideally collected for at least 4 weeks. Cyclic, पोजिशनल और टेम्पोरल वेरिएशन का क्राइटेरिया डिसाइड करने के बाद हम एक्चुअल डाटा को एक स्ट्रक्चर्ड डाटा टेबल में कलेक्ट करते हैं, जिसका सैंपल मैंने आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित किया है। ये डाटा कम से कम 4 हफ्ते का होना चाहिए। इसी प्रकार का एक उदाहरण मैंने विस्तार पूर्वक इसी वीडियो में आगे कवर किया है। Suppose our data analysis, that is voice of process, indicates that, मान लीजिए हमारी डाटा एनालिसिस जो कि वॉइस ऑफ प्रोसेस है वो ये इशारा करती है कि टाइम टू टाइम वेरिएशन, दैट इज मंडे टू संडे, ऑफ ऑर्डर डिलीवरी टाइम इज approximately 18 minutes, where acceptable variation is less than 20 minutes. Cyclic, that is order to order or unit to unit variation is approximately 10 minutes. Position to position, that is zone to zone variation is approximately 35 minutes. Don't worry, we will learn how to calculate each variation very soon in this video. चिंता मत कीजिए, हर वेरिएशन को कैसे निकाला जाता है ये जल्दी ही हम इस वीडियो में सीखेंगे। Since order to order variation of order delivery time is minimum, that is approximately 10 minutes. Hence, it eliminates many potential or probable causes. क्योंकि order delivery time का cyclic variation यानी order to order variation सबसे कम approximately 10 मिनट है, तो ये हमारे कई सारे probable causes या potential causes को eliminate यानी rule out कर देता है, और वो इस प्रकार है। And these probable
or potential causes which are eliminated by low cyclic variation are variety of order, number of items in order, service, that is man-to-man variation, unskilled service manpower, late supply from the kitchen, less manpower in the kitchen, etc. Time to time variation, that is day to day variation from Monday to Sunday, is approximately 18 minutes, which is acceptable against the set targets of less than 20 minutes. It also eliminates some other probable or potential causes. And these probable or potential causes which are eliminated are: service manpower is not sufficient to handle heavy rush on Sunday or holiday or on heavy rush day, kitchen manpower is not sufficient on these days, etc. डे टू डे वेरिएशन यानी मंडे से संडे का वेरिएशन, जिसको हम टाइम टू टाइम वेरिएशन कहते हैं, वो करीब 18 मिनट है, जो कि एक्सेप्टेबल टारगेट 20 मिनट के अंदर है। इसलिए ये भी कुछ प्रोबेबल कॉजेज़ और पोटेंशियल कॉजेज़ को एलिमिनेट यानी रूल आउट कर देता है, और वो इस प्रकार है: संडे, हॉलीडे या हैवी रश डे के दिन इस हैवी रश को डील करने के लिए सफिशिएंट सर्विस मैन पावर या किचन मैन पावर का ना होना इत्यादि। क्योंकि पोजीशन टू पोजीशन यानी जोन टू जोन वेरिएशन ऑर्डर डिलीवरी टाइम का इस केस में सबसे ज़्यादा है, जो कि करीब 35 मिनट है। इसलिए ये एनालिसिस राइट कॉज यानी रेड एक्स को जानने में हमें राइट क्वेश्चंस को पूछने में मदद करती है। और ये राइट क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं, ये मैं आगे इंग्लिश वाले सेक्शंस में बता रहा हूँ। ये क्वेश्चंस इस स्लाइड के द्वारा भी आप देख सकते हैं। सिंस इन दिस एग्जांपल पोजीशन टू पोजीशन, that is zone to zone variation, is maximum for order delivery time, that is approximately 35 minutes. It helps us to ask the right question to identify the right root cause, and some such questions can be: is it related to zone in charge specific, because zones in charge are being rotated? Which zone has the highest delivery time? What are the possible reasons for high delivery time in that zone? Why delivery time is more in that zone and why delivery time is less in other zone, etc. So our learning is that the categorization, the variation using multivariate analysis in 3 macro or major categories, that is cyclic, temporal and positional, not only helped us to drop many non-significant causes even without validating them, but gave us the direction to identify the right source of variation and right causes for a particular identified variable parameter, that is high order delivery time. तो हमारी लर्निंग ये है कि मल्टीवेरी एनालिसिस ने वेरिएशन को 3 मेजर कैटेगरीज में यानी साइक्लिक, टेम्पोरल और पोजिशनल वेरिएशन में विभाजित करके ना सिर्फ बहुत सारे पोटेंशियल कॉजेज़ को बिना किसी वैलिडेशन के एलिमिनेट कर दिया है या रूल आउट कर दिया है, बल्कि हमें राइट रूट कॉज ढूंढने की एक सही डायरेक्शन भी प्रदान की है। कैटेगरीज कैन बी मोर, सच एज मैनेजर वाइज, सर्विस एग्जीक्यूटिव वाइज, टाइम वाइज, टेबल वाइज, number of items wise, etc. etc. In such a scenario, we should use stratification tool. Stratification will be discussed very soon in our free Six Sigma Black Belt YouTube video series. Categories और भी हो सकती हैं, जैसे मैनेजर वाइज, सर्विस एग्जीक्यूटिव वाइज, टाइम वाइज, टेबल वाइज, नंबर ऑफ आइटम वाइज इत्यादि इत्यादि। इस प्रकार के सिनेरियो में हमें स्ट्रेटिफिकेशन टूल का इस्तेमाल करना चाहिए। स्ट्रेटिफिकेशन को जल्दी ही हम अपनी फ्री सिक्स सिग्मा ब्लैक बेल्ट यूट्यूब वीडियो सीरीज में सीखेंगे, समझेंगे। आफ्टर मल्टीवेरी एनालिसिस, फॉर डीप एनालिसिस वी कैन यूज अनदर appropriate tool. The list of such tools are
very long, but I am displaying some common tools on your screen. मल्टीवेरी एनालिसिस के बाद डीप एनालिसिस के लिए हम दूसरा कोई अप्रोप्रिएट टूल यूज़ कर सकते हैं। इस प्रकार के टूल्स की लिस्ट काफ़ी लंबी हो सकती है, बट कुछ कॉमन टूल्स की लिस्ट मैं आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित कर रहा हूँ। लेट्स नाउ लर्न हाउ टू कैलकुलेट साइक्लिक, टेम्पोरल एंड पोजिशनल वेरिएशन यूजिंग मल्टीवेरी एनालिसिस। तो चलिए सीखते हैं कि साइक्लिक, टेम्पोरल और पोजिशनल वेरिएशन को मल्टीवेरी एनालिसिस के द्वारा कैसे कैलकुलेट किया जाता है। क्योंकि मल्टीवेरी एनालिसिस को सिर्फ कंटिन्यूस वेरिएबल पैरामीटर के लिए अप्लाई किया जा सकता है, इसलिए पहला स्टेप ये है कि एक मल्टीवेरी एनालिसिस के लिए सिर्फ एक ही कंटिन्यूस वेरिएबल पैरामीटर होना चाहिए। मैं इंग्लिश वाले एक्सप्लेनेशन में कंटिन्यूस वेरिएबल पैरामीटर के कुछ उदाहरण दे रहा हूँ, जो आपकी स्क्रीन पर भी मैंने प्रदर्शित किए हैं। सिंस मल्टीवेरी एनालिसिस कैन बी ओनली अप्लाइड if data is continuous variable, hence the first step is to select only one variable output for one multivary analysis. Example of continuous variable parameters are length, height, diameter, weight, thickness, pressure, temperature, hardness, cycle time, response time, waiting time, customer satisfaction score, etc. etc. Second step is to verify that the measurement system is reliable before conducting the multivary analysis. This slide represents my recommendation if you want to follow a Six Sigma approach. For any query, you can contact us on our WhatsApp number. मल्टीवेरी को परफॉर्म करने के लिए सेकंड स्टेप ये है कि हम ये वेरीफाई कर लें कि हमारा मेजरमेंट सिस्टम रिलायबल है। यह स्लाइड मेरी रिकमेंडेशन को दर्शाती हैं अगर आप सिक्स सिग्मा अप्रोच का पालन करना चाहते हैं। किसी भी प्रकार की क्वेरी के लिए आप हमसे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। वी विल डिस्कस द बायस इन मेजरमेंट एंड एट्रीब्यूट एंड वेरिएबल्स MSA बोथ इन वन ऑफ आवर फ्यूचर मॉड्यूल्स ऑफ आवर फ्री सिक्स सिग्मा ब्लैक बेल्ट यूट्यूब वीडियो सीरीज। हम अपनी फ्री सिक्स सिग्मा ब्लैक बेल्ट यूट्यूब वीडियो सीरीज़ के भविष्य में आने वाले किसी एक मॉड्यूल में एट्रीब्यूट और वेरिएबल MSA और साथ ही मेजरमेंट में बायस क्या होता है इसकी विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। आई एम एक्सप्लेनिंग द कैलकुलेशंस विद एन एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल, वी वांट टू अराइव एट द राइट रूट कॉज फॉर एक्सेसिव वेरिएशन इन अ पर्टिकुलर पैरामीटर which is length 45.6 mm of a plastic part XYZ made through injection molding process, specification of which is 45.6 plus minus 0.1 mm. इन कैलकुलेशंस को मैं एक एग्जांपल के द्वारा बता रहा हूँ। मान लीजिए एक पार्ट है XYZ जिसमें लेंथ 45.6 mm एक पर्टिकुलर पैरामीटर है जिसमें एक्सेसिव वेरिएशन के रूट कॉज को हम ढूंढना चाहते हैं। ये प्लास्टिक पार्ट इंजेक्शन मोल्डिंग प्रोसेस से बनता है और लेंथ की स्पेसिफिकेशन है 45.6 प्लस माइनस 0.1 mm. दिस पार्ट इज मेड थ्रू अ मोल्ड विच हैज़ टू cavities, namely cavity A and cavity B. This means that since mold of this part has two cavities, so at a time two parts are made simultaneously. यह पार्ट उस मोल्ड से बनता है जिसमें दो कैविटीज़ हैं, कैविटी A और कैविटी B। क्योंकि इस मोल्ड में दो कैविटीज़ हैं तो इसका मतलब है कि एक बारी में दो पार्ट एक साथ बनते हैं। This image shows a mold of the part with two cavities. This is not the actual image. Image of actual mold and part is not available with me. यह मोल्ड उस पार्ट को प्रदर्शित कर रहा है जिसमें दो कैविटीज़ हैं। यह एक्चुअल इमेज नहीं है। एक्चुअल मोल्ड और एक्चुअल पार्ट की इमेज मेरे पास उपलब्ध नहीं है। The tolerance of the part is plus minus 0.1 mm, that is 0.2 mm. So the measuring equipment should have a minimum least count of 0.2 divided by 10 is equal to 0.02 mm.
We selected digital vernier as measuring instrument in this case, which has a least count of 0.01 mm. इस पार्ट की टॉलरेंस है प्लस माइनस 0.1 mm यानी कि 0.2 mm। तो इसके लिए मेजरिंग इक्विपमेंट या मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट होना चाहिए 0.2 mm डिवाइड बाय 10 इज इक्वल टू 0.02 mm। इस पार्ट के मेजरमेंट के लिए जो हमने मेजरिंग इक्विपमेंट चुना या मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट चुना वो चुना एक डिजिटल वर्नियर जिसका लीस्ट काउंट है 0.01 mm। We ensured that this instrument is calibrated and MSA is carried out. In this case, bias is statistically 0, NDC is 7.2 and percentage GRR is 11.5%. GRR and NDC are calculated in this case because readings are taken by more than one person. मल्टीवेरी एनालिसिस के लिए इस इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करने से पहले हमने ये भी सुनिश्चित किया कि कैलिब्रेशन इस इंस्ट्रूमेंट का किया हुआ है और एमएसए भी किया हुआ है। इस केस में बायस है स्टैटिस्टिकली 0, परसेंटेज जीआरआर है 11.5% और एनडीसी है 7.2। इस केस में परसेंटेज जीआरआर और एनडीसी को इसलिए निकाला गया क्योंकि रीडिंग्स लेने के लिए एक से ज़्यादा पर्सन को यूज़ किया गया। After this, we have to decide three things. First is number of consecutive parts to be checked for unit to unit or piece to piece variation. We took n is equal to 5. Second is number of positions or locations for position to position variation. In our case, it is 2 because part XYZ is made through two cavities A and B. And the third thing is time for time to time variation. In this case, we want to study the variation of length in a part XYZ in a shift on a single machine. So the time will be within a shift. इसके बाद हमें तीन चीज़ें डिसाइड करनी होती हैं। पहला तो ये है कि हम यूनिट टू यूनिट और पीस टू पीस वेरिएशन के लिए कितने कंसेक्यूटिव पार्ट्स लेंगे। हमने इस केस में 5 लिए। दूसरा ये है कि हमें ये डिसाइड करना होगा कि नंबर ऑफ पोजीशंस या लोकेशंस पोजीशन टू पोजीशन वेरिएशन को निकालने के लिए कितनी चाहिए होंगी। हमारे केस में ये 2 होंगी क्योंकि ये पार्ट 2 कैविटी से बनता है, कैविटी ए और कैविटी बी। और तीसरा टाइम टू टाइम वेरिएशन के लिए क्या टाइम लिया जाएगा, क्योंकि हम इस केस में एक शिफ्ट के अंदर एक मशीन के ऊपर टाइम को स्टडी करना चाहते हैं तो हमारा टाइमिंग एक शिफ्ट के अंदर ही रहेगा। द फोर्थ स्टेप इज वी विल मेक अ डाटा टेबल एज शोन ऑन योर स्क्रीन। We will take data for each location at 9 a.m., 11 a.m., 1 p.m. and 3 p.m. that is within the shift. And each time for each location we will take 5 consecutive pieces. चौथे स्टेप में हम एक डाटा टेबल के द्वारा डाटा को स्ट्रक्चर्ड रूप में कलेक्ट करेंगे। दोनों लोकेशन यानी लोकेशन ए और बी के 5 कंसेक्यूटिव पीसेस का डाटा 9 बजे, 11 बजे, दोपहर के 1 बजे और दोपहर के 3 बजे लिया जाएगा ताकि एक शिफ्ट पूरी कवर हो जाए। दिस इज द डेटा विच इज़ कलेक्टेड फॉर लेंथ 45.6 प्लस माइनस 0.1 mm फॉर पार्ट XYZ ऑन मशीन 1 to 3 on a specific date. Wherever possible, pieces 1 to 5 should ideally be the consecutive pieces. ये पार्ट XYZ की लेंथ 45.6 का डाटा कलेक्शन है जो कि मशीन 1 to 3 पर लिया गया है ऑन अ स्पेसिफिक डेट। जहाँ तक संभव हो ये कोशिश करें कि जो पीस 1 to 5 का डाटा है वो कंसेक्यूटिव पीसेस का हो। कंसेक्यूटिव मतलब लगातार बने हुए पीस। सो हाउ टू कैलकुलेट यूनिट टू यूनिट और पीस टू पीस वेरिएशन? वी विल कैलकुलेट द रेंज against each row. For example, the first row maximum reading is 45.67 and the minimum reading is 45.5. So the range of first row is 0.17 mm. And piece to piece or unit to unit variation is the average of all these range, which in our case is 0.141 mm.
यूनिट टू यूनिट या पीस टू पीस वेरिएशन निकालने के लिए सबसे पहले हम हर रो की रेंज निकाल लेंगे। जैसे कि पहले रो की रेंज है मैक्सिमम रीडिंग जो कि 45.67 है माइनस मिनिमम रीडिंग जो कि 45.5 है, तो पहले रो की रेंज है 0.17 mm। और यूनिट टू यूनिट और पीस टू पीस वेरिएशन क्या होगा, ये सभी रेंज का एवरेज निकाल देंगे और वो एवरेज रेंज को हम कहेंगे यूनिट टू यूनिट वेरिएशन, जो हमारे केस में निकल कर आई 0.141 mm। For calculating time to time variation, first we have to calculate the average of readings of each row. We will add the readings of first row, which are 45.52, 45.67, 45.54, 45.53 and 45.5. And then we will divide by number of readings, which in our case is 5. So average of first row is 45.552. Like this we will calculate the average of each row. टाइम टू टाइम वेरिएशन निकालने के लिए सबसे पहले हमें हर रो का एक एवरेज निकालना होगा। हमारे केस में जैसे फर्स्ट रो का एवरेज आएगा उन 5 रीडिंग्स को जोड़कर और उनको 5 से डिवाइड करके। इस केस में 5 रीडिंग हैं 45.52, 45.67, 45.54, 45.53 और 45.5। इन सबको जोड़ देंगे और 5 से डिवाइड कर देंगे तो फर्स्ट रो का एवरेज निकल कर आया 45.552 mm। इसी तरह हम सभी रो का एवरेज निकाल लेंगे। Then we will calculate the average against each time. Against 9 am we have 2 average readings. One is 45.552 and another is 45.66. The average of these two readings comes out as 45.606. We can calculate this average by second method also. Against 9 am we have 10 readings including location A and B. We can take average of all these 10 readings. Likewise, we will calculate average against each time, that is 9 am, 11 am, 1 pm and 3 pm. एवरेज से हम हर टाइम के अगेंस्ट एवरेज निकाल लेंगे। जैसे 9 बजे के अगेंस्ट 2 एवरेज हैं, एक है 45.552 जो लोकेशन ए का एवरेज है और एक है 45.66 जो लोकेशन बी का एवरेज है। इन दोनों का जो कंबाइंड एवरेज निकल कर आएगा वो 9 बजे का एवरेज होगा और वो हमारे केस में आया 45.606। इसी तरह हम सभी टाइम के अगेंस्ट 11 बजे, 1 बजे, 3 बजे का एवरेज भी निकाल लेंगे। इस एवरेज को हम दूसरी तरीके से भी निकाल सकते हैं। 9 बजे के अगेंस्ट हमारे 10 पीस बने, लोकेशन ए के 5 और लोकेशन बी के 5, तो हम इन 10 पीस का एवरेज लेकर भी 9 बजे का एवरेज निकाल सकते हैं। And the time to time variation will be maximum of these average 45.733 minus minimum of these average 45.606. So if we will subtract these two, we will get 0.127 mm. That is range of these average. और टाइम टू टाइम वेरिएशन क्या होगा, जो इनमें से मैक्सिमम एवरेज है उसमें से मिनिमम एवरेज को घटा देंगे। हमारे केस में मैक्सिमम है 45.733 और मिनिमम है 45.606। इसको जब हम घटा देते हैं तो टाइम टू टाइम निकल कर आया 0.127 mm. For calculating the positional to positional or location to location variation, we will first calculate the average readings of each row. Then we will filter the location wise average and calculate the overall average of position A, including all the times for position A as shown in this slide on your screen, and then we will calculate the overall average of location B. पोजीशन टू पोजीशन या लोकेशन टू लोकेशन वेरिएशन निकालने के लिए सबसे पहले हम हर रो की रीडिंग्स का एक एवरेज रीडिंग निकाल लेंगे। फिर हम इस डाटा को लोकेशन वाइज फिल्टर करके सबसे पहले पोजीशन ए का ओवरऑल एवरेज निकालेंगे, जैसा कि इस स्लाइड में आपको दिखाया गया है, और फिर लोकेशन बी का भी एवरेज निकाल लेंगे। लोकेशन ए और बी का जब आप अलग अलग एवरेज निकालेंगे तो उस लोकेशन के सभी पीस को कंसिडर करेंगे, चाहे वो किसी भी टाइम पर बने हों। पोजिशनल वेरिएशन इज मैक्सिमम एवरेज ऑफ एनी पोजीशन आउट ऑफ n पोजीशंस माइनस मिनिमम एवरेज ऑफ एनी पोजीशन आउट ऑफ
n positions. That is range of average of positions. In our case, there are only two positions, that is location A and location B. So the range of these two positions is 45.805, that is maximum, minus 45.558, that is minimum, is equal to 0.247. So the positional variation in our case is 0.247 mm. अब हमारे पास दो लोकेशन के एवरेज आए, एक लोकेशन ए का और लोकेशन बी का. तो पोजिशनल वेरिएशन क्या हुआ, जो इनमें से मैक्सिमम एवरेज है जो कि हमारे केस में है 45.805, माइनस जो इनमें से मिनिमम एवरेज है जो हमारे केस में है 45.558 mm. सो पोजिशनल वेरिएशन क्या हुआ हमारे केस में, वो हुआ 0.247 mm. अगर पोजीशन 2 से ज़्यादा है तो जितनी भी पोजीशंस हैं उसमें से जो भी मैक्सिमम एवरेज आएगा और जो भी जितनी भी पोजीशन है उसमें से जो मिनिमम एवरेज आएगा उनको माइनस करके हम पोजीशन टू पोजीशन वेरिएशन निकाल लेंगे. सो इन आवर केस साइक्लिक वेरिएशन, दैट इज यूनिट टू यूनिट वेरिएशन और वेरिएशन बिटवीन द कंसेक्यूटिव pieces is 0.141 mm. Time to time variation, that is temporal variation, is 0.127 mm. That is variation within a shift on a single machine. But the cavity to cavity, that is position to position variation, is maximum and that is 0.247 mm. तो हमारे केस में पीस टू पीस या यूनिट टू यूनिट या साइक्लिक वेरिएशन जो कि 5 कंसेक्यूटिव पीसेस के बीच का वेरिएशन है वो निकल कर आया 0.141 mm. टाइम टू टाइम वेरिएशन जो विद इन अ शिफ्ट का वेरिएशन है एक ही मशीन के ऊपर, वो निकल कर आया 0.127 mm. लेकिन जो कैविटी टू कैविटी या पोजीशन टू पोजीशन वेरिएशन निकल कर आया वो सबसे ज़्यादा निकल कर आया और वो निकल कर आया 0.247 mm. इन आवर केस आउट ऑफ 3 macro source of variation, position to position variation, that is cavity to cavity variation, is the highest. So it hints that out of list of many probable causes for high variation of length 45.6 mm in part XYZ, mold related parameter can be dominant X, that is red X. क्योंकि इस केस में 3 मैक्रो वेरिएशन में से सबसे ज़्यादा वेरिएशन पोजीशन टू पोजीशन यानी केविटी टू केविटी मिला. तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग हिंट देता है कि इतने सारे पैरामीटर्स में से कोई मोल्ड रिलेटेड पैरामीटर ही रेड एक्स हो सकता है. टू फाइंड द मोल्ड रिलेटेड रेड एक्स पैरामीटर वी कैन आइदर यूज शाइन इन टूल्स सच एज पेयर्ड कंपैरिजन, बी वर्सेस सी एनालिसिस और एनी अदर एप्रोप्रिएट टूल. अब मोल्ड रिलेटेड रेड एक्स पैरामीटर को ढूंढने के लिए या तो हम शाइन इन टूल जैसे कि पेयर्ड कंपैरिजन, बी वर्सेस सी एनालिसिस या कोई अन्य एप्रोप्रिएट टूल को यूज़ कर सकते हैं. मल्टीवेरी एनालिसिस का हमारे केस में क्या फ़ायदा हुआ कि पार्ट XYZ में जो लेंथ 45.6 का एक्सेसिव वेरिएशन आता था उसके कई सारे संभावित कारण मल्टीवेरी एनालिसिस रूल आउट कर देता है और वो संभावित कारण मैं इंग्लिश के सेक्शन में बता रहा हूँ, आप वहाँ देख लीजिएगा. बाकी मैं इस स्लाइड पर भी उन कारणों को प्रदर्शित कर रहा हूँ. बेस्ड ऑन द आउटकम ऑफ मल्टीवेरी एनालिसिस इन दिस केस, मैनी प्रोबेबल कॉजेज फॉर हाई वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ पार्ट XYZ आर नॉट इम्पॉर्टेंट, मीन्स दे कैन नॉट बी रेड एक्स पैरामीटर. And the probable causes which are not important or which may not be important in this case are machine operator untrained, machine operator unskilled, material of the part, humidity in the raw material, hold time, temperature, pressure, operator change, etc. I am now quickly taking the graphical method of multivariate analysis. मैं जल्दी से आपको multivariate analysis का graphical method भी बता देता हूँ. First step is to make the graph in Excel. Either we have to convert our original data in table M as shown on your screen, where the data is arranged each time and each piecewise, or we collect the original data in table M directly.
क्योंकि मल्टीवेरी का ग्राफ हम एक्सेल से बनाएंगे, तो इसको बनाने के लिए या तो हम ओरिजिनल डाटा टेबल को टेबल एम में कन्वर्ट कर दें, जहाँ की डाटा को हर टाइम हर पीस के हिसाब से लगाया गया है, या हम ओरिजिनल डाटा ही टेबल एम में डायरेक्टली कलेक्ट करें. And then we will select the whole table M and we will make the line graph as displayed on your screen. इसके बाद हम टोटल टेबल M को सेलेक्ट कर देंगे और उस टेबल को सेलेक्ट करके लाइन ग्राफ बना देंगे. लाइन ग्राफ कैसा लगता है देखने में, वो मैंने आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित कर दिया है. Then we will visualize और एनालाइज द रिजल्ट्स. इसके बाद हम रिजल्ट्स को विजुलाइज या एनालाइज कर लेंगे. First is time to time variation. How to visualize time to time variation is being displayed on your screen. पहला टाइम टू टाइम वेरिएशन है और टाइम टू टाइम वेरिएशन को कैसे विजुलाइज किया जाता है मैंने आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित कर दिया है. This slide will help you to visualize location to location और positional to positional variation. ये स्लाइड आपको लोकेशन टू लोकेशन और पोजिशनल टू पोजिशनल वेरिएशन को विजुलाइज करने में मदद करेगी. दिस स्लाइड शोज द साइक्लिक और यूनिट टू यूनिट वेरिएशन ऑफ लोकेशन ए एंड लोकेशन बी अगेंस्ट ईच टाइम ब्लॉक, दैट इज 9 AM, 11 AM, 1 PM एंड 3 PM. ये स्लाइड लोकेशन ए और लोकेशन बी का हर टाइम ब्लॉक यानी 9 बजे, 11 बजे, 1 बजे और 3 PM का साइक्लिक वेरिएशन यानी यूनिट टू यूनिट वेरिएशन दर्शाती है. दिस स्लाइड हेल्प्स अस टू विजुलाइज दैट द हाईएस्ट पीस टू पीस वेरिएशन इन कैविटी ए इज एट 9 AM and the highest piece to piece variation in cavity B is at 3 PM, and there is no unit to unit variation in cavity B at 1 PM. ये स्लाइड ये विजुलाइज करा रही है कि कैविटी ए में पीस टू पीस वेरिएशन 9 बजे सबसे ज़्यादा है और कैविटी बी में पीस टू पीस वेरिएशन शाम के 3 बजे सबसे ज़्यादा है और कैविटी बी में 1 बजे कोई भी पीस टू पीस वेरिएशन नहीं है. दिस इज द ग्राफिकल एंड एनालिटिकल समरी ऑफ मल्टीवेरी एनालिसिस फॉर आवर केस. हमारे केस की ग्राफिकल मल्टीवेरी और एनालिटिकल मल्टीवेरी की समरी मैं आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित कर रहा हूँ. आई एम शेयरिंग विद यू अनदर मेथड ऑफ ग्राफिकल मल्टीवेरी एनालिसिस थ्रू सम स्लाइड्स विदाउट माई बैकग्राउंड कमेंट्री. But in this method, cyclical variation cannot be studied or cannot be visualized. मैं ग्राफिकल मल्टीवेरी का एक और मेथड आपकी स्क्रीन पर कुछ स्लाइड्स के माध्यम से प्रस्तुत कर रहा हूँ, वो भी मेरी बिना किसी बैकग्राउंड कमेंट्री के. इस मेथड में हम साइक्लिकल वेरिएशन को स्टडी या विजुलाइज नहीं कर सकते हैं. If someone is not very comfortable to analyze or visualize cyclical, temporal and positional variation by graphs, then I will recommend to use analytical method instead of graphical method. मेरा सुझाव ये रहेगा कि जहाँ पर भी ग्राफ द्वारा पोजिशनल, टेम्पोरल और साइक्लिक वेरिएशन को एनालाइज करने में या विजुलाइज करने में दिक्कत आए, वहाँ पर ग्राफिकल एनालिसिस की जगह एनालिटिकल मल्टीवेरी एनालिसिस का प्रयोग किया जाए. नाउ सपोज द सेम पार्ट was being made through a mold which has only one cavity. Similar cases can be machined parts or those processes where only one unit can be made or serviced or delivered at a time. अब एक बार मान लीजिए कि वही पार्ट ऐसे मोल्ड के द्वारा बनाया जा रहा है जिसमें सिर्फ एक कैविटी है. मशीन पार्ट और बहुत सारे प्रोसेसेस में इस प्रकार के सिमिलर केसेस मिलेंगे जहाँ की एक वक्त पर सिर्फ एक ही यूनिट को बनाया या सर्विस या डिलीवर किया जा सकता है. सपोज द सेम पार्ट इज प्रोड्यूस्ड on two different machines, that is machine A and machine B. So in this case, the rest of the things will remain same, but
In position to position, instead of cavity A and cavity B, machine A and B will appear. मान लीजिए ये पार्ट दो डिफरेंट मशीन्स में बनता है, मशीन ए और मशीन बी। तो इस केस में पोजीशन टू पोजीशन वेरिएशन के लिए हमारा कैविटी ए और कैविटी बी की जगह मशीन ए और मशीन बी आ जाएगा। बाकी पीस टू पीस और टाइम टू टाइम का फॉर्मेट सेम रहेगा। दिस इज द चेंज इन द डेटा टेबल। द ओनली चेंज इज इंस्टेड ऑफ कैविटी ए एंड कैविटी बी, now it is representing machine A and machine B. If this part would have been produced on three different machines, then in the position column, we would have taken three positions, that is machine A, machine B and machine C, instead of taking two positions, that is machine A and machine B. But this is a case of two machines only. ये स्लाइड डाटा टेबल में चेंज को प्रदर्शित कर रही है और ओनली चेंज ये हुआ है कि केविटी ए और केविटी बी की जगह अब मशीन ए और मशीन बी आ गया है। और मान लीजिए ये पार्ट अगर तीन मशीन पे बनता तो हम पोजीशन टू पोजीशन के कॉलम में तीन मशीन लिखते, दैट इज़ मशीन ए, मशीन बी और मशीन सी, ना कि मशीन ए और मशीन बी। Now instead of calling positional variation as cavity to cavity variation, we will call it as machine to machine variation. And the changed conclusion in this case is that mold is not an important cause at all, and some machine B related parameter can be redex. और अब हम पोजिशनल वेरिएशन को कैविटी टू कैविटी वेरिएशन की जगह मशीन टू मशीन वेरिएशन कहेंगे। अब इस बदले हुए परिप्रेक्ष्य में अगर हमारे को साइक्लिक वेरिएशन, टेम्पोरल वेरिएशन और पोजिशनल वेरिएशन पहले केस जैसा ही मिलता है तो हमारा कंक्लूज़न चेंज हो जाएगा। और वो चेंज कंक्लूज़न जो कि पहले केस से थोड़ा अलग होगा, और वो ये होगा कि मोल्ड इस केस में इम्पॉर्टेंट नहीं है। मशीन बी का कोई पैरामीटर रेडेक्स हो सकता है। लेट अस अंडरस्टैंड द मल्टीवेरिएट एनालिसिस with another example where the objective is to analyze the variation in diameter 20 plus minus 0.2 in part X. Issue with this diameter is high spread, that is low CP or PP value, that is low precision. The process is turning process. मल्टीवेरिएट एनालिसिस को एक और एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि पार्ट एक्स में डायमीटर 20 प्लस माइनस 0.2 के वेरिएशन को एनालाइज किया जाए। इस डायमीटर में इशू ये है कि इसमें सीपी और पीपी की वैल्यू लो है, यानी प्रिसिशन लो है। प्रोसेस जो है वो टर्निंग प्रोसेस है। टू गेट द बेस्ट नॉलेज ऑफ सीपी, सीपी के, पीपी, पीपी के, सीएम, सीएम के, वॉच मॉड्यूल 24 ऑफ आवर फ्री सिक्स सिग्मा ब्लैक बेल्ट यूट्यूब वीडियो सीरीज। सीपी, सीपी के, पीपी, पीपी के, सीएम, सीएम के की बेस्ट नॉलेज के लिए आप हमारी फ्री सिक्स सिग्मा ब्लैक बेल्ट यूट्यूब वीडियो सीरीज का मॉड्यूल 24 अवश्य देखिए। सो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप फॉर डूइंग मल्टीवेरिएट एनालिसिस? यस, यू आर राइट। वी हैव टू डिसाइड थ्री थिंग्स। फर्स्ट इज द सैंपल साइज फॉर cyclic variation, which we took 5. Second is number of positions for position to position or within the unit variation, which we took 2, that is diameter at the left and right side of the shaft. And third is time for time to time variation. Since we are interested to study shift-wise variation, hence we took shift-wise data for 2 days to take care of the repeatability aspect. तो मल्टीवेरिएट एनालिसिस करने के लिए हमारा पहला स्टेप क्या होगा? हाँ, आप बिल्कुल ठीक है। हमें 3 चीज़ें डिसाइड करनी होगी। पहला है सैंपल साइज फॉर साइक्लिक वेरिएशन, जो कि हमने 5 लिया। दूसरा है नंबर ऑफ पोजीशंस फॉर पोजीशन टू पोजीशन और विद इन द यूनिट वेरिएशन, वो हमने 2 ली। वो है शाफ्ट के लेफ्ट साइड और राइट साइड पर शाफ्ट का डायमीटर। और तीसरा है टाइम टू टाइम वेरिएशन के लिए टाइम को डिसाइड करना, क्योंकि हम डायमीटर के वेरिएशन में शिफ्ट टू शिफ्ट वेरिएशन को स्टडी करना चाहते थे, इसलिए हमने 2 दिन का शिफ्ट वाइज डाटा लिया ताकि रिपीटेबिलिटी का एस्पेक्ट भी चेक किया जा सके।
After finalizing the criteria for cyclic, positional, that is within unit, and temporal variation, what will be our next step? The next step is to make a structured data table for collecting the data. We collected the data in a well-designed data table as shown on your screen. In this case, piece 1 to 5 are consecutive pieces. साइक्लिकल, टेम्पोरल और पोजिशनल यानी विद इन यूनिट वेरिएशन का क्राइटेरिया डिसाइड करने के बाद हमारा अगला स्टेप क्या होगा? हाँ, बिल्कुल ठीक है, अगला स्टेप होगा हमें डाटा कलेक्शन के लिए एक वेल स्ट्रक्चर्ड डाटा टेबल तैयार करनी होगी। हमने इस डाटा को एक वेल डिज़ाइन टेबल में कलेक्ट किया जो कि आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित की गई है। इस केस में जो 5 पीस हमने लिए हैं वो लगातार बने हुए पीस हैं। सो व्हाट इज पीस टू पीस और यूनिट टू यूनिट वेरिएशन? पीस टू पीस एंड यूनिट टू यूनिट वेरिएशन इज द एवरेज ऑफ ऑल द रेंज and which in our case is 0.353 mm. पीस टू पीस या यूनिट टू यूनिट वेरिएशन क्या होगा? वो होगा सारी रेंज का एवरेज या सारी रेंज को औसत, और जो हमारे केस में निकल कर आया 0.353 mm. For calculating the time to time variation, we need shift wise average of the diameter. And for it, we have to modify the table and arrange the original data shift wise as shown on your screen. टाइम टू टाइम वेरिएशन निकालने के लिए हमें शिफ्ट वाइज एवरेज डायमीटर की ज़रूरत पड़ेगी और इसके लिए हमें टेबल को मॉडिफाई करना पड़ेगा और ओरिजिनल डाटा को शिफ्ट वाइज अरेंज करना होगा, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर मैंने प्रदर्शित किया है। टाइम टू टाइम वेरिएशन, विच इन आवर केस इज shift to shift variation, is the range of shift wise average diameter. Maximum shift wise average in our case is 20.07 and the minimum shift wise average is 19.99. So the time to time variation in our case is 20.07 minus 19.99, that is 0.08 mm. टाइम टू टाइम वेरिएशन जो हमारे केस में शिफ्ट टू शिफ्ट वेरिएशन है उसको निकालने के लिए हमें शिफ्ट वाइज एवरेज डायमीटर की रेंज निकालनी होगी। मैक्सिमम शिफ्ट वाइज एवरेज डायमीटर हमारे केस में है 20.07 और मिनिमम है 19.99। सो टाइम टू टाइम वेरिएशन हमारे केस में हुआ 0.08 mm, जिसको हम शिफ्ट वाइज वेरिएशन भी कह सकते हैं। दिस स्लाइड एक्सप्लेन्स दैट फॉर कैलकुलेटिंग द पोजिशन टू पोजिशन वेरिएशन दैट इज विद इन यूनिट वेरिएशन, we have to arrange the data position wise, and in our case the positions are left and right side of the shaft for measurement of diameter, that is variation in the diameter due to taper in the shaft. यह स्लाइड एक्सप्लेन कर रही है कि पोजीशन टू पोजीशन या विद इन यूनिट वेरिएशन के लिए हमें डाटा को पोजीशन वाइज अरेंज करना पड़ेगा और हमारे केस में पोजीशन है लेफ्ट और राइट साइड ऑफ द शाफ्ट, यानी कि शाफ्ट में टेपर की वजह से डायमीटर में होने वाला वेरिएशन। एंड व्हाट इज पोजीशन टू पोजीशन वेरिएशन? पोजीशन टू पोजीशन वेरिएशन इज रेंज ऑफ एवरेज डायमीटर ऑफ पोजीशंस। एवरेज डायमीटर ऑफ राइट साइड इज 20.030 and the left side is 20.029. Hence, the position to position variation is 20.030 minus 20.029 is equal to 0.001 mm. और पोजीशन टू पोजीशन वेरिएशन कैसे निकालेंगे? इसके लिए हम पोजीशंस के एवरेज डायमीटर की रेंज निकाल लेंगे। जो मैक्सिमम एवरेज डायमीटर आया वो आया राइट पोजीशन का जो कि है 20.030 mm, और जो मिनिमम एवरेज डायमीटर आया वो आया पोजीशन लेफ्ट साइड का जो कि हमारे केस में है 20.029। तो पोजीशन टू पोजीशन वेरिएशन क्या हुआ? 20.030 माइनस 20.029 इज इक्वल टू 0.001 mm. So in this case the summary is that the unit to unit or piece to piece variation is 0.353 mm. Shift to shift, that is temporal variation, is
0.08 mm, and position to position, that is within unit variation, the variation in the left side of the shaft and the right side of the shaft is 0.001 mm. तो इस एग्जांपल में मल्टीवेरी एनालिसिस के बाद समरी इस प्रकार है कि पीस टू पीस या यूनिट टू यूनिट वेरिएशन, जिसको हम साइक्लिकल वेरिएशन कहते हैं, वो है 0.353 mm। शिफ्ट टू शिफ्ट वेरिएशन यानी कि टेम्पोरल वेरिएशन है 0.08 mm, और पोजीशन टू पोजीशन वेरिएशन, जिसको हम विद इन यूनिट वेरिएशन भी कहते हैं, जो इस केस में लेफ्ट साइड ऑफ द शाफ्ट और राइट साइड ऑफ द शाफ्ट है, वो है 0.001 mm. And our conclusion in this case is that out of 3 macro source of variation, the unit to unit variation is the highest. In our case, unit to unit variation is the variation between 5 consecutive pieces. What is the benefit of this multivariate analysis? The benefit is that this analysis rules out many probable causes such as material, operator change, power cut, taper, etc. To find the actual radix parameter, we can use the next appropriate tool. तो इस केस में हमारा कंक्लूजन ये निकल के आया कि वेरिएशन के 3 मैक्रो सोर्स में से सबसे ज़्यादा जो वेरिएशन है वो है यूनिट टू यूनिट वेरिएशन, और हमारे केस में यूनिट टू यूनिट वेरिएशन का मतलब है 5 लगातार बने हुए पीसेस में डायमीटर का वेरिएशन। इस एनालिसिस का फ़ायदा क्या हुआ? इस एनालिसिस का फ़ायदा ये हुआ कि ये एनालिसिस बहुत सारे प्रोबेबल कॉज को रूल आउट कर देती है, जैसे कि मटेरियल, ऑपरेटर चेंज, पावर कट, टेपर इत्यादि इत्यादि। एक्चुअल रेडिक्स पैरामीटर का पता लगाने के लिए हम नेक्स्ट एप्रोप्रिएट टूल को यूज़ कर सकते हैं। आई एम नाउ शेयरिंग वन सर्विस रिलेटेड एग्जाम्पल। दिस एग्जाम्पल इज अबाउट अ जनरल मैनेजर of restaurant A who wants to achieve order delivery time within 15 minutes during lunch time through multivariate analysis. Order delivery time starts after customer places the order. If the same customer places multiple orders with a time gap between them, each order is counted as a separate order. मैं एक सर्विस रिलेटेड एग्जाम्पल आपके साथ साझा कर रहा हूँ। ये एग्ज़ाम्पल उस जनरल मैनेजर के बारे में है जो रेस्टोरेंट ए में लंच टाइम के दौरान ऑर्डर डिलीवरी टाइम को 15 मिनट के अंदर अचीव करना चाहता है मल्टीवेरिएट एनालिसिस के द्वारा। ऑर्डर डिलीवरी टाइम कस्टमर के ऑर्डर प्लेस करने के बाद शुरू होता है। अगर सेम कस्टमर एक से ज़्यादा ऑर्डर देता है और उनके बीच में टाइम गैप होता है, तो ऐसे हर ऑर्डर को सेपरेट ऑर्डर काउंट किया जाता है। ऑर्डर डिलीवरी इज आइडेंटिफाइड एज अ की CTQ पैरामीटर विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर कस्टमर सेटिस्फैक्शन, thus improving the business. ऑर्डर डिलीवरी टाइम को की CTQ पैरामीटर लिया गया क्योंकि ये कस्टमर सेटिस्फैक्शन और बिजनेस इम्प्रूवमेंट दोनों के लिए ज़रूरी है। Some important information about this restaurant in this case are that the customer tables are numbered and are physically divided in 3 zones, namely zone 1, 2 and 3. Rush time for the lunch is between 12 noon to 2:30 p.m. And for like-to-like comparison, data for each day is collected around 1 p.m. for 4 consecutive orders. इस केस में इस रेस्टोरेंट से जुड़ी हुई कुछ इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस हैं, वो इस प्रकार हैं कि कस्टमर टेबल्स को नंबर किया गया है और उनको 3 जोन यानी 1, 2, 3 में फिज़िकली डिवाइड किया हुआ है। लंच टाइम में जो रश रहता है वो दोपहर के 12 बजे से लेकर 2:30 बजे के बीच में रहता है। और लाइक टू लाइक कंपैरिजन को इंश्योर करने के लिए हर दिन जो डाटा लिया गया वो करीब दोपहर के 1 बजे के आसपास 4 कंसेक्यूटिव ऑर्डर्स का लिया गया। दिस इज़ द डाटा टेबल वेयर the data is collected in a structured form. So position wise is zones 1, 2, 3. Unit to unit variation is the variation between 4 consecutive order, that is order 1, 2, 3 and 4.
and time wise is Monday to Sunday. Order 1 to 4, here are 4 consecutive orders. The least count for data collection is 1 minute and MSA is conducted before collecting the data. MSA means Measurement System Analysis. ये जो डाटा को कलेक्ट किया गया है उसकी डाटा टेबल है जो कि वेल स्ट्रक्चर्ड है. पोजीशन यहाँ पर जोन्स हैं 1 2 3. यूनिट टू यूनिट वेरिएशन 4 कंसेक्यूटिव ऑर्डर यानी ऑर्डर 1 2 3 और 4 का है और टाइम टू टाइम वेरिएशन मंडे टू संडे का है. लीस्ट काउंट जो डाटा कलेक्शन का है वो 1 मिनट है और डाटा कलेक्शन से पहले MSA को कंडक्ट किया गया है. MSA means Measurement System Analysis. Piece to piece or unit to unit variation, which in this case we can call as order to order variation, is average of all the range is equal to 4.9 minutes. Piece to piece या unit to unit variation, जिसको इस केस में order to order variation भी कह सकते हैं, उसको हम निकालेंगे रेंज का एवरेज लेके जो इस केस में निकल कर आया 4.9 minutes. To calculate time to time variation, which in our case is Monday to Sunday variation, we have to calculate day wise average of all the orders on that particular day, including all zones. How to do it? This is being explained through a slide on your screen. डे टू डे वेरिएशन यानी मंडे टू संडे वेरिएशन को निकालने के लिए हमें उस पर्टिकुलर दिन के सभी ऑर्डर्स का डे वाइज एवरेज लेना होगा और जब हम ऐसा कर रहे होंगे तो उस पर्टिकुलर डे में जितने जोन्स हैं उन सब का डाटा इंक्लूड किया जाएगा. इसको मैंने इस स्लाइड के माध्यम से आपके लिए एक्सप्लेन किया है. एंड टाइम टू टाइम वेरिएशन दैट इज़ डे टू डे वेरिएशन मीन्स मंडे टू संडे इज़ maximum 17.6 minutes on Friday minus minimum 12.8 minutes on Thursday is equal to 4.8 minutes. Just note that the maximum average of order delivery is on Friday, which is 17.6 minutes. और टाइम टू टाइम वेरिएशन यानी कि डे टू डे वेरिएशन जो हमारे केस में मंडे टू संडे है वो आया मैक्सिमम एवरेज जो कि फ्राइडे को है 17.6 मिनट्स माइनस मिनिमम एवरेज जो कि थर्सडे को है 12.8 मिनट्स इज इक्वल टू 4.8 मिनट्स. एंड टू कैलकुलेट द जोन वाइज वेरिएशन दैट इज पोजीशन टू पोजीशन वेरिएशन वी हैव टू अरेंज द डाटा जोन वाइज एज शोन ऑन योर स्क्रीन. पोजीशन टू पोजीशन वेरिएशन जिसको हम जोन टू जोन वेरिएशन भी कहेंगे इस केस में, उसको निकालने के लिए हमें जोन वाइज डाटा को अरेंज करना पड़ेगा जैसा कि इस स्लाइड में प्रदर्शित किया गया है. आफ्टर अरेंजिंग द डाटा जोन वाइज वी हैव टू कैलकुलेट द एवरेज ऑर्डर डिलीवरी टाइम अगेंस्ट ईच जोन एंड द लोकेशन वाइज वेरिएशन दैट इज जोन टू जोन वेरिएशन इज मैक्सिमम एवरेज ऑफ ऑर्डर डिलीवरी टाइम of any zone minus minimum average of order delivery time of any zone. Maximum in this case is 19 minutes and minimum in this case is 12.2 minutes. Hence, position to position or zone to zone variation in this case is 6.8 minutes. एक बार जब डाटा जोन वाइज लग गया तो हम हर जोन का ऑर्डर डिलीवरी टाइम का एवरेज निकाल लेंगे. पोजीशन टू पोजीशन या जोन टू जोन वेरिएशन को निकालने के लिए हमें जो भी मैक्सिमम एवरेज किसी भी जोन का आया उसमें से मिनिमम एवरेज जो किसी जोन का है उसको माइनस करना होगा. हमारे केस में मैक्सिमम एवरेज जो ऑर्डर डिलीवरी टाइम का आया वो है 19.0 मिनट्स और मिनिमम जो आया वो है 12.2 मिनट्स. तो पोजीशन टू पोजीशन और जोन टू जोन वेरिएशन इस रेस्टोरेंट का हुआ वो हुआ 6.8 minutes. So the overall summary for order delivery time during lunch hour in this case for restaurant A is that the order to order or cyclic variation is 4.9 minutes. Variation between the different days of week, that is temporal variation, is 4.8 minutes. But zone to zone variation,
that is positional variation is 6.8 minutes. That means out of 3 macro source of variation, zone to zone variation is highest. तो लंच समय के दौरान ऑर्डर डिलीवरी टाइम की इस रेस्टोरेंट ए की ओवरऑल समरी इस प्रकार है। ऑर्डर टू ऑर्डर वेरिएशन, जिसको हम साइक्लिक वेरिएशन कहते हैं, वो है 4.9 मिनट्स। डे टू डे वेरिएशन यानी हफ्ते के विभिन्न दिनों के दौरान ऑर्डर डिलीवरी टाइम में होने वाला वेरिएशन, जिसको हम टेम्पोरल वेरिएशन कहते हैं, वो है 4.8 मिनट्स। जबकि जोन टू जोन वेरिएशन, जिसको हम पोजिशनल वेरिएशन कहते हैं, वो है 6.8 मिनट्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि वेरिएशन के 3 मैक्रो सोर्स में से जो सबसे ज़्यादा वेरिएशन आया वो आया जोन टू जोन वेरिएशन। टू फाइंड द एक्चुअल रेडक्स पैरामीटर वी कैन यूज़ शाइन-इन टूल्स और एनी अदर अप्रोप्रिएट टूल। दिस जनरल मैनेजर यूज्ड स्ट्रेटिफिकेशन फर्स्ट एंड देन पेयर्ड कंपैरिजन। एक्चुअल रेडक्स पैरामीटर का पता लगाने के लिए हम शाइन-इन टूल या कोई अन्य अप्रोप्रिएट टूल का यूज़ कर सकते हैं। इस जनरल मैनेजर ने पहले स्ट्रेटिफिकेशन का यूज़ किया और उसके बाद पेयर्ड कंपैरिजन यूज़ किया। सपोज वी आर द जनरल मैनेजर, देन वी शुड लुक फॉर वन मोर इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन in this analysis, and that is, though day to day variation is low in comparison to zone variation, but the average delivery time in lunch on Friday is very high, that is 17.6 minutes. Hence we should monitor its trend, and if this observation repeats in more data of about 4 to 5 weeks, the REDX parameter for this response, that is high order delivery time on Friday, is to be separately identified using the appropriate tool. मान लीजिए हम जनरल मैनेजर हैं तो हमें एक चीज़ और नोट करनी चाहिए, और वो ये है कि हालांकि जोन टू जोन वेरिएशन की तुलना में डे टू डे वेरिएशन कम आया है, लेकिन आपने ये नोटिस किया होगा कि फ्राइडे के दिन एवरेज डिलीवरी टाइम सबसे ज़्यादा मिला, जो था 17.6 मिनट्स। तो हमें इसका ट्रेंड 4-5 हफ्ते और मॉनिटर करना चाहिए, और अगर ये फ्राइडे को हाई डिलीवरी टाइम रिपीट होता है तो हमें इस रिस्पॉन्स का रेडक्स पैरामीटर अप्रोप्रिएट टूल को लगाकर अलग से ज़रूर ढूंढना चाहिए। सो व्हाट इज़ अवर लर्निंग? द लर्निंग इज़ दैट आफ्टर द मल्टीवेरिएट एनालिसिस, आवर क्वेरीज और क्वेश्चंस फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफ द बिगर इशू, which in this case is high variation in order delivery time, will now be very specific and very limited. तो मल्टीवेरी ने हमें क्या सिखाया? हमें ये सिखाया कि मल्टीवेरी एनालिसिस करने से हमारा जो बड़ा इशू जो इस केस में था, हाई वेरिएशन इन ऑर्डर डिलीवरी टाइम, उसके इन्वेस्टिगेशन के रिलेटेड बहुत सारी क्वेरीज और बहुत सारे क्वेश्चंस सिकुड़ जाते हैं, कम हो जाते हैं और बहुत ही स्पेसिफिक हो जाते हैं। And examples of some specific questions are: why average delivery time in zone 3 is high and why in zone 1 and 2 it is low? Is it a layout specific problem or table specific problem of zone 3? Is it a specific service executive or manager issue? Kitchen cannot be a cause. और जो स्पेसिफिक और लिमिटेड क्वेश्चन हो जाते हैं उसके कुछ उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ कि जोन 3 में ऑर्डर डिलीवरी टाइम क्यों ज़्यादा है और 1 और 2 में क्यों कम है। क्या ये जोन 3 की लेआउट स्पेसिफिक प्रॉब्लम है या टेबल स्पेसिफिक प्रॉब्लम है? क्या ये कोई पर्टिकुलर सर्विस एग्जीक्यूटिव और मैनेजर का इशू तो नहीं है? किचन लेकिन इसमें कारण नहीं हो सकता। And if after collecting data for more period, it is found that order delivery time is always high or mostly high on Fridays, then our query or question to find the right cause for this particular response can be why average delivery time in all zones is high on Friday, etc. But in this case, it might be a kitchen related issue. मान लीजिए जब आपने फ्राइडे के ऑर्डर डिलीवरी टाइम का डाटा इकट्ठा किया और ये पाया कि फ्राइडे को अधिकतर या हमेशा ही
ऑर्डर डिलीवरी टाइम ज़्यादा रहता है तो हमारी क्वेरी और क्वेश्चन राइट रूट कॉज को पता लगाने के लिए इस प्रकार हो सकते हैं कि सभी जोन्स में एवरेज ऑर्डर डिलीवरी टाइम फ्राइडे के दिन ही ज़्यादा क्यों होता है, बट इस केस में किचन संबंधित कारण हो सकता है। We can even use multivariate analysis to study the variation in scores of batsman A in one-day cricket game, that is 50 over game. How to carry out multivariate analysis in such a case? This slide demonstrates that the approach is similar to previous examples. हम मल्टीवेरिएट एनालिसिस का इस्तेमाल वनडे क्रिकेट में एक बैट्समैन ए के स्कोर के वेरिएशन को स्टडी करने के लिए भी कर सकते हैं, और ये स्लाइड ये प्रदर्शित कर रही है कि इसको करने की अप्रोच भी लगभग पिछले एग्जाम्पल के जैसी ही है। सपोज आवर ऑब्जेक्टिव इज टू स्टडी द वेरिएशन ऑफ रेनफॉल इन इंडिया इन मानसून सीजन। कैन वी अप्लाई multivariate analysis or multivariate chart in this case? You may send your comments in the message box of this video or to our WhatsApp number. मान लीजिए हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम मानसून सीज़न में इंडिया में होने वाली रेनफॉल के वेरिएशन को स्टडी करना चाहते हैं, तो क्या हम इस केस में मल्टीवेरिएट एनालिसिस को इस्तेमाल कर सकते हैं? आप अपने कमेंट्स को इस वीडियो के मैसेज बॉक्स में भेज सकते हैं या हमें व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। दैट्स ऑल अबाउट दिस मॉड्यूल, बट इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू नो about the detailed syllabus of black, green and yellow belt course of this video series and how you can obtain their certificates from us, this information is given through some slides at the end of this video. Certification is a paid service, but this video series is absolutely free. इस मॉड्यूल में दिए जाने वाले इनपुट्स यहीं तक थे, लेकिन अगर आप इस कोर्स के ब्लैक, ग्रीन और येलो बेल्ट कोर्स का विस्तृत सिलेबस और आप हमसे इनका सर्टिफिकेट कैसे प्राप्त कर सकते हैं इसकी जानकारी चाहते हैं, तो ये जानकारी इस वीडियो के अंत में कुछ स्लाइड्स द्वारा दी गई है। सर्टिफिकेशन एक पेड सर्विस है, लेकिन ये वीडियो सीरीज़ पूरी तरह से फ्री यानी मुफ्त है। सी यू वेरी सून विद अवर नेक्स्ट मॉड्यूल। जल्दी ही आपसे अगले मॉड्यूल में मुलाकात होगी। लेट मी क्विकली टेल अबाउट माई सेल्फ। जल्दी से अपने बारे में बता दूं। आई एम पंकज अग्रवाल। आई एम अ कॉर्पोरेट ट्रेनर, मोटिवेटर, चेंज मैनेजमेंट कंसल्टेंट, एडवाइजर एंड लाइफ कोच। आई एम ऑल्सो अ ट्रेनर ऑन सिक्स सिग्मा ब्लैक बेल्ट एंड सिक्स सिग्मा मास्टर ब्लैक बेल्ट। द नेम ऑफ माई कंपनी इज सिंपली ध्रुव. Simply Dhruv was started in year 2003 by me and my wife Madhusmita Agarwal, where simply means to make things simple and Dhruv is the name of my son. I have also written a book on problem solving which I have not published for market yet. You can visit us on our website www.simplydhruv.in. If you have any query, you can drop your query in the comment box of this video or you can message me that query on my WhatsApp number. अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप इस वीडियो के मैसेज बॉक्स में उसको ड्रॉप कर सकते हैं या उस क्वेरी को आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। इफ़ यू डोंट वांट टू मिस द इंफॉर्मेशन अबाउट द नेक्स्ट मॉड्यूल, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो नाउ। अगर आप अगले मॉड्यूल की इंफॉर्मेशन समय से चाहते हैं तो इस वीडियो को तुरंत ही लाइक और सब्सक्राइब कर दें। आई हैव ऑल्सो मेड वेरी यूजफुल एंड पावरफुल वीडियो ऑन बिहेवियरल सब्जेक्ट। मैंने बिहेवियरल और मोटिवेशनल सब्जेक्ट पर भी बहुत पावरफुल वीडियो बनाए हैं। आई होप you would have liked this video and this video was very useful to you. मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और ये आपके बहुत काम का होगा। If you wish to watch my previous videos and upcoming videos, please don't forget to like and subscribe this video. अगर आप मेरे बनाए हुए वीडियो देखना चाहते हैं और भविष्य में आने वाले वीडियो की समय पर जानकारी चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। सी यू सून। फिर मिलेंगे।